Good morning students, welcome to our social science class. So it is the second part of our fifth chapter, that is In Search of Peace, Buddha and Mahavir. So today we will study about the preachings of Buddha. Preachings. After attaining enlightenment, Buddha went to Sarnath where he met his old Brahmin friends. For the first time he preached to those 5 Brahmins at Sarnath. These first preachings are called धर्मचक्र प्रवर्तन. तो जो गौतम बुद्ध थे तो सारनाथ में आके वो अपने जो 5 उनके ब्राह्मण फ्रेंड्स थे उनको मिले और वहाँ उन्होंने उनको प्रेचिंग्स दिए थे. तो उनके जो पहले प्रेचिंग्स था तो उनको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है. Buddha gave very simple sermon to get rid of the miseries of the world. According to him, there are 4 Arya truths. The world is full of miseries. The cause of suffering is greed or a strong desire. Destruction of suffering is renunciation of desire. Adoption of octangle path मतलब अत्संग मार्ग eliminates desire. These 4 truths explained by Buddha are known as Buddhist principles, also known as सम्यक दर्शन. ये जो 4 उन्होंने प्रेचिंग्स दिए थे तो उनको सम्यक दर्शन कहा जाता है. तो क्या कहा था गौतम बुद्ध ने? द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिजरीज. जो हमारा वर्ल्ड है वो पूरे दुख से भरा हुआ है. तो इस दुख का कारण क्या है? डिज़ायर, मतलब बहुत सारे हमारी इच्छाएं होती है वो पूर्ण नहीं होती है वो. डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग इज़ रिनाउंसिएशन ऑफ डिज़ायर. तो हम इसको त्याग करेंगे, जो भी हमारे डिज़ायर्स है उसको त्याग करेंगे तो ही हम खुश रह सकते हैं. एडॉप्शन ऑफ अत्संग मार्ग, मतलब तो हमें संन्यास का मार्ग अपनाना चाहिए. These 4 truths explained by Buddha are known as Buddhist principle. इन चारों प्रिंसिपल्स को क्या कहा जाता है? सम्यक दर्शन कहा जाता है. Buddha as a great reformer. Buddha was a great religious and social reformer. He worked lifelong to eliminate the pollutants in religion and society. He had many disciples. Many kings and states were encouraged by him. His human religion. He did the following reforms. तो गौतम बुद्ध थे वो बहुत बड़े धार्मिक और सामाजिक सुधारक बन गए थे. तो उनके जो भी प्रिंसिपल्स थे उनको बहुत सारे राजा लोग अपना लिया था. Denial of God and soul. Buddha denied the God and soul and gave importance to karmism. According to him, if there was God, sorrows would not have been there. Instead of indulging in welfare of soul, one should live a virtuous life in the present. तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? तो गॉड और सोल को इम्पोर्टेंट नहीं दिया था, उन्होंने अपने कर्म को इम्पोर्टेंट दिया था. अपोजिशन ऑफ रिचुअल्स. ही अपोज द रिचुअल्स परफॉर्म in Hinduism and the sacrifice of animals in the yajna. He said that non-violence is the highest value. The greatest duty of all human beings is to treat animals non-violently. तो उन्होंने जो हवन होम करते थे उसके अंदर प्राणियों का बलिदान देते थे तो उनको अपोज किया. तो उन्होंने बोला कि अहिंसा का मार्ग अपनाओ और सारे एनिमल्स के साथ वायलेंस मत करो. अपोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो. At this time Hinduism was divided into 4 varnas: Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Buddha opposed this varna system. He said being born in a high family does not make anyone great. He becomes great by his deeds, by his consciousness, by following the path of the truth and non-violence. He highly opposed the discrimination of high and low prevailing in the society. जो हमारे समाज में जो वर्ण सिस्टम था, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चीज़ में वो विश्वास नहीं करते थे. जो भी आदमी है वो अपने कर्म से, अपने काम से वो
बड़ा या छोटा होता है, वो ऐसा मानते थे। इम्पोर्टेंस ऑफ वुमन। Buddha gave equal importance to women as to the men. He said that the path of nirvana is not only for men, women can also achieve nirvana through sadhana and duty. तो men और वुमेन को सेम इम्पोर्टेंस देते थे। तो उन्होंने कहा मैन की तरह वुमेन भी निर्वाण कर सकते हैं, वो भी तपस्या कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। Nirvana. Buddha attained the enlightenment in the shadow of the Bodhi tree on Vaishak Purnima by acquiring knowledge. Buddha continued reforming society and religion in India. He led many people towards the righteous path. Giving preachings of truth and non-violence, he opposed eating of non-vegetarian food and high and low discrimination. He died at the age of 80 years in Kushinara and attained Nirvana, but his ideas and religion is still alive in the world. तो गौतम बुद्ध जो थे तो वो बोधि ट्री के नीचे बैठ के तपस्या किया था और उनको वहाँ सत्य का साक्षात्कार हुआ था। तो उन्होंने बहुत सारे प्रेचिंग्स दिए थे और उन्होंने कहा बहुत सारे जो अंधविश्वास थे उनको भी उन्होंने दूर किया था। तो इनके बहुत सारे फॉलोवर्स भी थे और उन्होंने जो नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेशन खाना है उसको मना किया था। और ये हाई और लो डिस्क्रिमिनेशन होती है सोसाइटी में, ऊंच और नीच का भेदभाव उन्होंने दूर करने की कोशिश की। और उनके जब 80 साल की उम्र में उन्होंने अपना निर्वाण ले लिया, मतलब अपने देह को त्याग दिया। लेकिन अभी भी उनके जो आइडियाज़ है और उनके जो प्रेचिंग्स है वो अभी भी पूरे वर्ल्ड में अलाइव है, मतलब सब लोग मानते हैं उनको। नेक्स्ट, महावीर स्वामी। जैनिज़्म आल्सो हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडियन सोसाइटी लाइक बुद्धिज़्म। देर आर टोटल 24 तीर्थंकर्स इन जैनिज़्म. Agams are the main source of knowing about Jainism. According to these texts, the first Tirthankar of Jainism was Rishabdev or Adinath. 23rd Tirthankar was Parshvanath. Parshvanath was the son of king of Ashwasena of Kashi. He left home at the age of 30 and became a hermit and preached Jainism. He opposed Vedic religion and rituals and caste system. He gave the preachings of truth, non-violence, asceticism and non-possessiveness. After him, Mahavira Swami was the 24th and the last Tirthankar. We will learn about him. तो जैनिज़्म के बारे में हमें अगम से एक सोर्स से उससे पता चलता है। तो उनके एक फर्स्ट तीर्थंकर के नाम था ऋषभदेव और जो 23rd तीर्थंकर थे उनका नाम है पार्श्वनाथ। और जो लास्ट और जैनिज़्म के जो लास्ट तीर्थंकर थे 24th, उनका नाम है महावीर स्वामी। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी अर्ली लाइफ। महावीर स्वामी वॉज बॉर्न इन Gantra Kshatriya dynasty of Kundagram, Republic of Vaji Union. His childhood name was Vardhaman. His father Siddharth was the king of Republic. Mahavira Swami's mother's name was Trishila Devi. His elder brother's name was Nandivardhan. Like Gautam Buddha, Mahavira Swami was also a prince. Thus he acquired knowledge of many arts. He was married to Princess यशोदा. हिज डॉटर्स नेम वॉज प्रियदर्शिनी. तो महावीर स्वामी का चाइल्डहुड नेम था वर्धमान. तो इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ और वो एक गणराज्य के राजा थे और उनके मदर का नाम था त्रिशिला देवी. और उन्होंने वो भी एक जो महावीर स्वामी थे और वो भी एक प्रिंस थे, मतलब वो भी राजा थे. तो उन्होंने भी गौतम बुद्ध की तरह बहुत सारे नॉलेज एक्वायर किया. फिर बाद में उन्होंने भी दीक्षा प्राप्त की. लिविंग होम एंड साधना. ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30 years इन सर्च ऑफ नॉलेज. ही लिव्ड लाइफ एज अ भिक्षुक एंड डिड अ
harsh penance for 12 years on the bank of river Rijupalika. He attained the highest knowledge, that is Kevalagyan. As he conquered his mind and senses, he was called Jin. Such great mighty Vardhaman came to be known as Mahavir. तो जो वर्धमान थे वो अपने 30 साल की उम्र में अपना घर बार छोड़ के नॉलेज प्राप्त करने के लिए चले गए, तो वो भिक्षुक का जीवन जीते थे। तो उन्होंने पूरे 12 साल तक बहुत ही कठिन तपस्या की थी। कौन से रिवर के पास? उन्होंने रिजापालिका नाम के एक रिवर था, वहाँ पे वो बैठ के अपने ज्ञान प्राप्त किया और तपस्या किया था। उसके बाद उनको महावीर स्वामी कहा जाता है। प्रेचिंग्स लाइक बुद्ध, महावीर स्वामी टू बिलीव दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर एंड सोरोज, ही रिजेक्टेड गॉड्स एग्जिस्टेंस। हिज टीचिंग्स आर नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ त्रिरत्न। ही प्रेच्ड द फॉलोइंग 5 वोज। तो ये भी गौतम बुद्ध की तरह सोच रहे थे कि जो भी हमारे पूरी दुनिया है वो पूरे दुख से भरा हुआ है, तो उन्होंने भी मना किया कि भगवान के अस्तित्व को, उनके कुछ टीचिंग्स है और उनको त्रिरत्न कहा जाता है। इनके प्रेचिंग्स कौन से हैं? नॉन वायलेंस, ट्रूथ, एसेटी एंड नॉन पॉजेसिवनेस, ब्रह्मचर्य। नॉन वायलेंस, Mahavira Swami believed that violence is one of the biggest evil of human society. There should not be violence of any kind. Even the smallest creature has the right to live. Even mental violence should not be done. Protecting animals is the real duty of human beings. तो उन्होंने अहिंसा का मार्ग को अपनाया था। उनका तो कहना था कि किसी भी हम छोटे से छोटे जो क्रिएचर्स होते हैं तो उनको भी मारना नहीं चाहिए और उनको भी जीने का हक है। ट्रूथ, वी शुड नेवर स्पीक लाइज, वी शुड नॉट स्पीक विदाउट थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग, वी शुड एब्सटेन एंगर टू फॉलो द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी फॉलोड इन एवरी सिचुएशन। हमेशा हमको सच बोलना चाहिए और कोई भी स्थिति में हमें सत्य को छुपाना नहीं चाहिए और गुस्से पे अपने कंट्रोल करना चाहिए। एसेटी, theft is the biggest evil. We should not take anybody's things without his or her permission. Entering anybody's house without permission is also like stealing. By saying so, he tried to keep the society of that time away from stealing. तो एसेटी का मतलब है चोरी करना। तो हमें ये बहुत बड़ी गुनाह होती है। हमें किसी के भी चीज़ को उनके परमिशन के बिना लेना नहीं चाहिए। अगर किसी के घर में भी हम जाते तो उनके परमिशन के बिना अंदर नहीं जाना चाहिए, ये उनके कहना था। नॉन पॉजेसिवनेस और अपरिग्रह, मैन शुड नॉट स्टोर goods, possessions, ornaments or clothings beyond their requirement. Keeping the things as per requirement reduces collection instinct in a person, and things like grains reach up to the poor people. This was his important message. तो उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति को उनको जितना उनके जीवन के लिए जितना चाहिए उतना ही चीज़ों को इकट्ठा करनी चाहिए, ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अगर उसके पास ज़्यादा है तो वो गरीब लोगों को बांटना चाहिए। ब्रह्मचर्य, he specifically told Jain monks and nuns to observe celibacy. तो ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहिए। महावीर स्वामी, as a great reformist, Mahavira Swami opposed rituals and sacrifices. He rejected presence of God. He condemned animal sacrifice in the yajnas. He said that the woman should be given equal rights like Buddha. He too preached in people's language, that is Prakrit and Ardhamagadi. With his simple and easy teachings, he changed people's lives. तो उन्होंने भी गौतम बुद्ध की तरह जो हवन होता है, यज्ञ होती है, उसके अंदर जो प्राणी का बलि देते थे, तो उन्होंने उसको अपोज किया था और
वुमेन्स को भी सेम इम्पोर्टेंस देना चाहिए, इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और उन्होंने जो गौतम बुद्ध ने जिस लैंग्वेज में मतलब प्राकृत और अर्धमागधी लैंग्वेज में जो लोगों को समझ में आए उसी लैंग्वेज में उन्होंने अपनी प्रीचिंग्स दी थी। निर्वाण, ही डाइड इन पावापुरी एट द एज ऑफ 72। तो उन्होंने 72 एज में अपना देह को त्याग किया था। इन दिस वे अबाउट 2500 ईयर्स एगो पीपल गॉट न्यू आइडियाज, religious rituals and defilement were removed. People became his followers in a large number. Both preachers obliged people to adopt the path of peace and virtue. Thus they promoted the virtue in the society. तो इस तरह से उन्होंने अपने प्रेचिंग से लोगों का दिल जीत लिया था और लोग उनको फॉलो भी करने लगे थे। ओके, तो we will finish our 5th chapter.